अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारद भक्ति सूत्र, इसका अध्ययन हो रहा है। गत सप्ताह हमने भक्ति सूत्र के बारे में, नारद भक्ति सूत्र की प्रस्तावना रखी। द कॉमन notion that Narad is a troublemaker is wrong. Narad is transformer. He is a supreme transformer. We also encircled various examples where Naradji was a divine instrument in helping others, especially with respect to their personal spiritual sadhana or the upliftment of consciousness. From Ratnakara at one end, the transformation of Ratnakara to Valmiki, Sage Valmiki, Bhagwan Vedavyasa generating a jigyasa, a special power in him to write Srimad Bhagavatam, to attain that fulfillment which Sri Vyasamuni was craving for. Another end, it was Dhruva and Prahlad. Narada's typical characteristic was in his to say something, of course beneficial, which would definitely create more urge towards the goal of that particular of the mission or of the individual. And hence he stopped or persuaded Dhruva not to do tapasya, penance, because he knew that Dhruva would attempt it more if somebody resists. Shit. Narada is Naram Dadati iti Narada. This Naram
means true knowledge. Scholars of Sanskrit would immediately realize. And true knowledge is always Satyam Priyam Hitam Jayat. It's truthful, beneficial, and Priyam, which would help the individual get transformed from its present state of consciousness. We know it's superconscious, subconscious, and conscious. Mrityulok is conscious. Patal is subconscious. And Akasha is superconscious. So based on the state, this is the science of transformation. In case we want in terms of the characteristics, it is what we are all striving for. Narada would help us get that either quickly or with intensity. So Naram Dadati. And then we had just started with the sutra. Athato Brahma Jigyasa. Athato Karma Jigyasa. Athato Bhaktim Vyakhyasamaha. So before we start diving deeper into these concepts, I would certainly let you know about the compartments we are planning to attain and deal with. Anything between 9 to 18 compartments. There are basically 9 compartments, but the description might require two expressions of 1 hour for one compartment. It depends. The first 6 sutras, as we are going to study, there was no mention on the group, including this embodiment. We forgot. We had decided, anyway, doesn't matter right now. Maybe after the expression, we can load or reload them. It might be my ignorance. I'm not sure. So the first 6, 1 to 6, is definition of. There are many commentators who differ in their style, expression, and functioning, and also the analysis. This is the most suitable which this individual experienced. About 7 to 4 is importance of renunciation and self-surrender. There are 84 sutras. Then we have got 15 to 24 as your exemplars of divine love. Categorization of divine love. 25 to 33, we'll have bhakti as the highest goal of human life. 34 to 42, suggestions on how to practice divine. It's not just important to mention something. It's also important to know how to practice divine love. बहुत फोन मुझे कल फोन आया था कि सर हम जानते हैं डिवाइन लव, अनुभव भी किए है, लेकिन ये प्रैक्टिस में उसमें कमी होती है. तो मैंने कहा आपका प्रश्न इतना सुंदर आया है क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में ये प्रैक्टिस ऑफ डिवाइन लव वुड बी स्पेशली एंड सस्टेनेबली emphasized. Then 43 to 50, we have importance of seeing
or seeking rather holy company. Satsangatve nissangatvam, nissangatve nirmohatvam, nirmohatve nishcharatatvam, nishcharatatve jivanmukti. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam. So, importance of seeking holy company. Then, from 51 to 57, we have difference between preparatory bhakti and supreme devotion. Most of us are in the preparatory bhakti. We feel that we are bhaktas. Doesn't matter what we feel. What matters, or actually what is what God thinks of us. And hence, it is the categorization, differentiation, integration, expression in its entirety about the preparatory devotion and supreme devotion. Then from 58 to 73, you've got forms of divine love, various forms of divine love, right? And finally, from 74 to 84, we have practice of ethical virtues. Remember, practice of ethical virtues and worship of God. So, do we have ethical virtues and non-ethical virtues? Yes. Now we are going to see them. So, this is how all these 84 sutras shall be divided into these 9 compartments, and each compartment we may or may not, might as well require 2 expressions of 1 hour, so that maximum within 18 expressions. I will never call it lectures, neither discourses nor lectures. It's an expression. So we require 18 expressions maximum. That is roughly 4 months to get into the complete nectarine feel of Naradiya Bhakti Sutra. So we formally begin today with informal and in the presence of our Lord and in the presence of Hanumanji as chief guest. He is the common denominator, all yakyas, and we try to remember him. We have to try because we normally are not conscious of his presence, and hence we first make an effort to remember so that he becomes a part of our consciousness. So the first sutra, now the sutra, as I told, is a single line or maybe 2-3 words only, like Athato Bhaktim Vyakhyasya, 3 words, which explain the solid philosophy with liquid melody. There is a kind of cadence, synchronization, harmony. It's an orchestra where we all dance to the tunes of Bhakti. And therefore the sutras, aphorisms, are small in appearance, smaller in appearance, but bigger in their import, bigger in their suggestive implications. We begin, Athato Bhaktim Vyakhyasya. The first compartment, I'll read all the 6. And we might as well do justice to only three of them today and 3 of them in the next, as I expressed, 2 expressions for 1 compartment. And there are 9 such compartments covering 84 sutras. Correct? First class. So sutras. Athato Bhaktim Vyakhyasya. I'm chanting because I think we forgot to place them on board. If it is my ignorance, I'll excuse me. Sa tasmin
परम प्रेम रूपा, सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। देखिए क्या कंटेंट आने वाला है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। यद ज्ञात्वा, यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति, यहोभाव, एक्सटेसी, स्पिरिचुअल एक्सटेसी। यद ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामः। This is our first compartment. Now we'll get the music of this. अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, यत् प्राप्य न किंचित् वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति, यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामः। This is the achievement of our, and as I told, is 1 to 6 is nothing but definitions of bhakti. In bhakti also we have bha. Bha is light. Bhaukti bhakti. Bhaja bhakti. It's an enlightenment. The process is an enlightenment. Sankalpa is an enlightenment. Goal is an enlightenment. Destiny is an enlightenment. Advaita of enlightenment. Atha to bhaktim व्याख्यास्यामः। अथा तो, अथः अतः, told you last time. अब यहां तक आ गए, अब नहीं, enough is enough. बहुत हो चुका है। हम लोग देखते हैं, लोग बोलते हैं बहुत हो चुका। कई बार स्वाध्याय में लोग आते हैं, मिलते, सर बहुत हो गया, ऐसा लगता है कि कहीं चले जाए। मैं बोला कहीं मत जाओ, वहां और कुछ चल हो जाए। ये जो है ना, this is disintegrated version of our, we have something in us but it is split. मैं उल्टा कहता हूं कहीं से आ जाओ, कहां आगे आने वाला है, अस्मिन सतु अस्मिन परम प्रेम रूपा, आगे बताओ। तो यहां तो आना है, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उल्टा ये कहना चाहिए आप कहीं नहीं जाना है, बस जहां है। और कितना बेहतरीन, ये समय का सदुपयोग होना चाहिए, जहां आप चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते। बताओ, मैं तो कहीं ना कहीं कुछ होता नहीं है। 5:30 is not the proper time. Could you just take it at 4 o'clock? No, sir, not 4 o'clock, because it's just after a tiring schedule of work, we just want to have cat snap. Can we have it little later? So all these excuses now are vanished into nothingness. We are encased. So enough is enough. Unless we are disappointed with all versions of our life, in all their formats, in all their transliteration, in all their translations, in all their transactions. देखो, कई बार हम उब जाते हैं कोई चीज से, लेकिन वो दूसरे फॉर्मेट में आ गया तो बदल बदल के माया सताती है। मैंने पहले कह चुका हूं, मैं बदल बदल के नकाब बदल बदल के माया सताती है। लेकिन सारे फॉर्म्स माया के जो है, उससे जब हम उब जाते हैं, when the pangs of hunger are satisfied and when the steadfast eyes are worried by the cruelties of life, think of me, I am caressing Baba. So ये स्टेप जो आती है, pangs of hunger are satisfied, अथा तो, then you are qualified
Prequalification is total understanding of anityam, asukham, lokam, imam prapya भजस्वमाम. सी अनित्यम असुखम इस साइड में है, इमम प्राप्य यहां तक मैं आ गया, हैविंग अटेन्ड भजस्वमाम. एंड द सेम थिंग भक्ति व्याख्यास्यामः. All sciences meet at point. It's a famous. In fact, we say all philosophies, all explanations, all rationalities, all discriminations meet at only one center, and that is this. So we are going to be initiated into different definitions, not like Newton's first law, second law, third law, like that definition. Law of conservation of energy. We have 5 to 10 definitions. Students of science and engineering, they know this. No. Each definition or a kind of expression brings beauty, splendor, radiance, effulgence with it. So, Athata, having understood this world and the miseries of this world, having experienced them in totality, having also understood that we on this planet are only guests, and we are unable to cross unless we have our God with us. We can never ever transcend. And hence all those pre-qualified soldiers, Narada says, now for them, with their intent and content, with their potency at peak, with their discrimination at total wakefulness, I shall explain them bhaktim व्याख्यास्यामः. देखो कई बार क्या होता है, आपको सब समझता है. I'm trying to give a very pragmatic view to all these expressions. Let's not get caught into these words. But little pinpricks, little, troubles en route, they move us from our core to the extent that we commit serious and frequent errors, and these errors magnify into mistakes, and these mistakes magnify into blunders. These blunders magnify into disaster. We again get caught in the mire of Maya, and then bhakti only becomes adambar, upasana. आज वो भी बात होने वाली है, उपासना और भक्ति. कई बार उपासना को भक्ति समझी जाती है. No. A clear, explicit, concise, clinical no. उपासना प्रसन्नता से जब तत्व जिज्ञासा में बदल जाती है तो भक्ति होती है. श्रीमद् भागवतम आप किसी को भी पूछे, उसका उद्देश्य क्या है? तत्व जिज्ञासा. और फिर विपुल करो. हो सकता है एक अध्याय पकड़ लो, एक कहानी पकड़ लो और उसको इस तरह से इतना चिंतन करो जीवन भर, तत्व जिज्ञासा, भागवतम का फल मिल गया. कहाँ क्यों लोड करना है ना? तो इसलिए ये चीज विशेष रूप से हमारे हाई कॉन्शियसनेस में रखना कि भक्ति की व्याख्या सिर्फ उनके लिए है
जो अब समझ रहे बस हो गए। अब देखिए विरोधाभास देखिए, हमें सब कुछ करना है और फिर हम बोलते हैं भक्त है और हम भक्ति के इसमें हो ही नहीं सकते। उपासना हो सकती है, आडंबर हो सकता है, भक्ति का दिखावा हो सकता है, भक्त कहलाए जा सकते हैं। भक्त होना और भक्त कहलाए जाना, इसलिए ये व्याख्या जो है वो हमें ठीक तरह से समझनी है कि ये क्या है। और एक बार इससे याद आया, नारद भक्ति सूत्र ही चल रहा था और एक सज्जन और उनकी श्रीमती जी दोनों आते थे। उन्होंने मुझे पूछा कि अब भक्ति सूत्र कहा और ये सवाल क्यों पूछा, मुझे आज तक नहीं समझा। उस वक्त तो बिल्कुल नहीं समझा। जैसे मैंने कहा, मुझे जब भी सवाल आता हूँ मैं पहले बोलता हूँ धाव धाव रे कृष्णा, धाव धाव रे कृष्णा। क्योंकि वो जवाब जो है वो क्या निकलने लगा पता नहीं, क्योंकि ऐसे सवाल, और वो सवाल इतना ऐसा था कि हमारे भगवान जो है, भगवान मतलब उनके पति देव बड़े आलसी है। उन्होंने मुझे कहा, ये शाम की बात, सत्संग हुआ था और उनके पतिदेव जो थे, हमारे मित्र थे, वो सभी मित्र हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने सुबह ही फोन किया था और उसमें कंप्लेंट की थी कि हमारी श्रीमती जी घर का बहुत काम बताती है। ये आजकल आज की परिस्थिति में कोई नहीं इसको बोल सकता है, पता नहीं घर घर में क्या सिचुएशन है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, अभी बाद में बताऊं। तो उन्होंने सुबह ही कंप्लेन कर दी थी कि ऐसा ऐसा है, और शाम को पता नहीं इन्होंने कंप्लेन की। ये 7 दिन का यज्ञ था, तो दूसरे दिन जब आए हमने उनको कहा, उनको पहले शाम को कहा था कि आपके पतिदेव को भी कल लेके आना, जो हमारे मित्र थे, और दोनों आ गए हमारे साथ। और प्रश्न प्रश्न पूछा, मैंने कहा यू आर मेड फॉर ईच अदर। वो खुश हो गए, क्योंकि आजकल तारीफ तो करते देखे, लोगों को लगा सर ऐसा कैसा बोल रहे हैं। मैं बोला सुबह हमारे दोस्त ने कंप्लेन की, आपको शायद पता नहीं है, और शाम को आप कंप्लेन कर रही है, आर यू नॉट मेड फॉर ईच अदर। सर दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर स्पेंडिंग आवर लाइफ इनटू नथिंगनेस। और वो उस शख्स को पूछ रहे हैं जिसको न उसका अनुभव न उसका भक्ति योग से कोई, मैं समझ नहीं रहा था कि नारद भक्ति सूत्र इससे कैसा जोड़ा है। तो हमने ऐसा ही उत्तर दे दिया, मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि मेड फॉर ईच अदर एक भक्ति का ही एक प्रकार है ना। देखो संतो, विषय बहुत ऊपर ऊपर में हल्का दिखता है, लेकिन मुझे तो लगा कि ये प्लान करके तो नहीं आया कि आज मैं भी आपके बारे में बोलूंगी और आप भी मेरे बारे में बोलोगे। और क्या संबंध है किसका, एक दूसरे को आलसी कह रहा है, दूसरा कह रहा है बहुत काम बताते हैं, ये करा के पता नहीं घर में और कोई तीसरी बात हो सकती है, समझ में नहीं आती है। और सी वी आर constantly involved in suicidal preoccupations with the non-essentials. These are non-essentials of life. Eternal mourners, saying good morning, eternal mourners, and there is no solution for it. There is no solution. आप ऐसे भी आपको भक्त मिलेंगे जो कहते हैं हम हमें सब घर का सब काम करके भी हम जो पढ़ने बैठते हैं, शास्त्र पढ़ने बैठते हैं, बोलते क्या पढ़ रहे हो शास्त्र, घंटों घंटे क्या शास्त्र पढ़ रहे। देखो काम नहीं किया तो भी प्रॉब्लम, काम किया तो भी प्रॉब्लम, शास्त्र पढ़ा तो भी प्रॉब्लम, शास्त्र नहीं पढ़ा तो भी प्रॉब्लम। इसलिए अनित्यम असुखम लोकम बस हो गया। I shall now, with one-pointed devotion, with my rationality at peak, with my discrimination and the discriminative intellect chiseled and baptized, I shall try to understand what दूसरा सूत्र, सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये अपने आप में पूरा भक्ति का है। सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। देखो सब जर्नी जो है वो ये होनी चाहिए, ये ना कि
खुदा की खोज में खुद को भूले, खुद की पहचान को, तो वो आडंबर है। और खुद की खोज में खुदा मिल जाए तो वो भक्ति है। स्वयं की खोज ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इनफैक्ट जीवन का अंतिम नहीं, पहला नहीं, जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और स्वयं की खोज नहीं है, ये सिर्फ अभिव्यक्ति है। खोज क्या हो सकती है? ये अभिव्यक्ति है। परिपूर्णता से स्वयं की अभिव्यक्ति, यही परमात्मा की अभिव्यक्ति। और ये है सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। बहुत चर्चा होगी इसकी। देखो, मैंने एक बार कहा था, आज मैं फिर से उसको बता रहा हूं, क्योंकि ये बातें बहुत बार बार बोलना भी जरूरी है कि आप अगर घृणा है, यहाँ ये बराबर अप्लाई होता है, आप अगर घृणा है तो परमात्मा आपका शत्रु है, और आप अगर प्रेम है तो शैतान भी आपका मित्र है ना। बहुत बार का आप भी सुन चुके हैं, बहुत बार, लेकिन ये ऐसा, इसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो हम अगर घृणा है तो सारी दुनिया हमारे लिए है, परमात्मा भी हमारा शत्रु है, और हम अगर प्रेम है तो शैतान भी हमारा मित्र। ये है परम प्रेम रूपा। और वो कैसे? सातु अस्मिन्, खुद की खोज में, स्वयं की परिपूर्णता। इट इज सेल्फ अनफोल्डमेंट, इट इज नॉट सेल्फ कंट्रोल, इट इज नॉट सेल्फ अटेनमेंट, इट इज नॉट सेल्फ डिस्कवरी, it is not self realization, it is self unfoldment. Flower was there in that bud, the unfoldment of petals blossomed into a flower, isn't it? देखिए, it's only a manifestation of the flower from the bud. Same thing is the manifestation, is the unfoldment of our essential self, de-recognizing our non-essential self. सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। देखो, इसके बारे में बहुत चर्चा हो सकती है। मैंने कहा प्रेम, एक चीज आप आज एक सूत्र पकड़ लेना, इसी सूत्र के साथ एक हमारे लिए एक डेफिनेशन आज पकड़, एक व्याख्या को बिल्कुल। देखो, कई बार आपने सुना है मैं मेरा, लेकिन समझता नहीं है चीज। मेरा, यह मैं का निवास स्थान। आई रिपीट, मेरा, यह मैं का निवास स्थान। अब आप एक अभ्यास करेंगे। हमने बार बार कहा है, हमें स्कॉलरशिप में इंटरेस्ट नहीं। अल्फाज गलत हो सकते हैं, कभी कुछ बोलना दाया बाया हो सकता है, लेकिन उसका जो निचोड़ है, उसका जो सिनॉप्सिस है, उसका जो समरी वर्षन है, वो हमारे वजूद का हिस्सा है। तो क्या चीज है? मेरा, यह मैं का निवास स्थान। कई बार आपने सुना है मैं को गलाना है, मैं से मुक्ति पाना है। लास्ट टाइम भी हमने कहा मैं की मुक्ति नहीं, मैं से मुक्ति होनी है। बट सर, जब हाउ टू डू इट? दैट इज व्हाट वी, द मोमेंट वी आर आउट, वी हैव टू थिंक अबाउट विटामिन सी। अरे नींबू नहीं है घर में आज। लोगों ने डेली कोर्स का भी एक खवा बना के रखा है। आजकल तो जो फोन करता है बोलता है बर्तन मांजे। मैं बोला बहुत अच्छे, क्योंकि ये क्या दर्शाता है? अभी तक बर्तन कभी मांजे नहीं है। आज तक सुना कभी? यहाँ की जितनी महिलाएं हमें आशीर्वाद देगी, आज उनको भी लग रहा होगा कि हमने जो काम करते थे अभी तक, कभी समझा? कभी बोलते थे बर्तन मांजे करके, वो तो स्वभाव स्वभाव था। स्वरूप नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्वभाव बोल रहा हूँ। आज इसकी भी बात होने वाली है, रास्ते में आधी रही थी। लेकिन अभी वो बचपन में जैसे बोलते थे हाँ मुझे घड़ी देखना आ गया, वैसे अभी सब लोग बोले बर्तन मांजे। जो ऑल फ्रेंड्स देयर, कोई बोल रहा है झाड़ू मारा, वो भी झूठ हो सकता है, बट कम से कम वो इस परिस्थिति का फायदा होके बोल दे रहा है कि मैंने भी झाड़ू मारा। अब क्या बोलना है? देखो ऐसे ऐसे। मैं बोला बहुत अच्छे, अभी ज्यादा हो गया तो हमने बोला गलत काम किया, क्या करे? 60 दिन होते आ रहे हैं, अब लोगों का यही काम चल रहा है। देखो, सातु अस्मिन् परम प्रेमा, ये हमारे स्वभाव की, हमारी अभिव्यक्ति है। हम छोटे छोटे काम करते हैं, उसकी हम अभिव्यक्ति है, और उसका हमें एक जिक्र चाहिए बाहर की दुनिया में।
तो ये जो परम प्रेम रूपा है वो क्या हो सकता है? फॉल इन लव विथ योरसेल्फ सो दैट यू आर इन फॉर लाइफ टाइम लव। देखिए ये भी बोल चुका हूं, फॉल इन लव विथ योरसेल्फ सो दैट यू आर इन फॉर लाइफ टाइम लव। कोई नहीं, कोई डिपेंडेंस नहीं, कोई आलम्बन नहीं, कोई बैसाखी नहीं, वही आने वाला है। यद लब्ध्वा यद प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही यद यद ज्ञात्वा मत्तो भवति। या मत्तो एक्सटेसी। क्या साहब क्या चल रहा है? कुछ नहीं देख रहे आप, सामने बैठे हैं, क्या चल रहा है? बस ऐसे ही। क्योंकि कुछ चल रहा है बोले तो भूतकाल आ जाएगा, पहले बोल चुका हूं, और कुछ चलाना है आगे तो भविष्य आ जाएगा। इसलिए मत्तो भवति प्रेम स्वरूप, इसलिए प्रेम स्वरूप ला रहा। कुछ नहीं सोचता था तो क्या बोलेंगे, नाम से बुलाएंगे। इस जगत पे जब नाम और रूप की उपाधि आ जाती है तो जगत बनता है। परमात्मा पे जब नाम और रूप की उपाधि आती है तो जगत बनता है, बराबर। इसी परमात्मा पे पंचकोशों की उपाधि आ गई अगर, तो जीव बनता है। आमी जीवी, ये बोलना भी गलत है लेकिन बोलते हैं हम जीवी। So we are conscious of panchakoshas, and hence we say we are jivis. So the moment we will not be conscious of Nam and Rupa, we will forget Jagat. We will transcend Jagat rather. When we will not have upadhis of panchakoshas, we will not say ourselves to be jivis, embodiments. When ये जो परमात्मा है इस पे जब माया की उपाधि चलती है तो उसके ईश्वर कहलाते हैं। ये देखा हमने सूत्रे मणिगणा इव। और ये तीनों को जब ट्रांसेंड करके ये डिलिंक हो जाता है तो जो बचता है वो है परमात्मा, वो है हमारा स्वरूप। स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी स्वभावानंद नहीं, कोई होंगे तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने तो नहीं सुना स्वामी स्वभावानंद, क्योंकि स्वभाव बदलता है और स्वामी बदलते नहीं है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तथा देयर इज नो एक्स संन्यास, एक्स डायरेक्टर, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, एक्स डीजी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एनीथिंग, बट नो एक्स सन्यासी। अगर एक्स कोई है तो सन्यासी था ही नहीं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो फिर स्वभावानंद नहीं हो सकता है, स्वभाव बदलता है, स्वरूप बदलता नहीं। हाँ, नाम रूप गल गया, पंचकोश ढल गए, माया छट गई, जो बचा वो परमात्मा, वो हमारा स्वरूप। सातु अस्मिन प्रेम स्वरूपा, प्रेम रूपा। यहाँ इतने अभ्यास नारद जी पहले ही कहा कि इन्होंने जगत पहचान लिया है लोगों ने, ऐसे ही इस भक्ति योग को पहचानने के लिए बैठे हैं नारद भक्ति सूत्र सुनने के लिए। तो इसलिए स्वरूप और रूप उन्होंने एक कर दिया, प्रेम रूपा। क्योंकि प्रेम का कोई ऐसा रूप थोड़ी हो सकता है जो हमें चेहरे से दिखेगा या हमारे नाम से दिखेगा या पंचकोशों की हमारे तादात्म्य से दिखेगा, नहीं। इसलिए प्रेम रूपा या प्रेम स्वरूपा एक ही हो। सातु अस्मिन, अस्मिन बहुत सुंदर शब्द है।